Hey guys, a very warm welcome to today's webinar on Android app development for machine learning model. So basically this is a series of webinars that is presented by IRSC GTBIT. So my name is Vipin. I am pursuing my bachelor's degree in information technology from Guru Gobind Singh Indraprasth University. So basically today we are going to learn about an Android app development, how to create an Android app from scratch, and we will be using ML model here. So we will also be doing some predictions on our dataset. So before to start all these things, let me know how many of you are already an Android app developer, or how many of you are enthusiast, you want to learn how to make an Android app. Please comment in the comment box. And also let me tell you, IRSC GTBIT is a technical society. Basically, it is a society. It is a society chapter of IIT Delhi Society, and it includes both technical as well as non-technical events. So today we are going to have an webinar on some technical stuff. So today we have Preetpal Singh with us. So basically Preetpal is going to tell you how to create this Android app, and also he will be showing you the complete working of this app, how they work, how it works. So before all this, let me introduce you what is IRSC GTBIT. So IRSC GTBIT is a society. So it has been inducted, it has been came into existence, let's say. So it conducts so many webinars, and not only webinars, it is also providing some uh, interns to industries. So basically, we are providing some internship to the students. Apart from this, also we are developing so many teams like web developers team, Python developer teams, and different teams. So basically, Python developer team is doing quite well, and other teams are also just in process to grow. So that's one thing. Apart from all these things, basically our aim, our motto is to develop a culture where everybody shares their information, their valuable technologies, so that everybody can learn and grow. So that's what IRSC GTBIT is. So apart from IRSC GTBIT, our today's sponsors sponsor is Vodin. So today's sponsor is Vadin, who is sponsoring this event. So let me tell you a little bit about Vadin. So Vadin is a group of such people who have developed a very good platform for those students who just want to prepare applications of Java without coding. So kindly go to the Vadin website and get familiar with them. This is an amazing platform, Vadin, which will help you to make Java applications without coding or very little coding. You will see there, and without much coding, you can prepare your Java apps. Not only apps, there are so many things that you can create through Vadin. So kindly visit their website. You will be learning a lot. So now I would request our speaker Preetpal Singh, who will be just holding the complete session. So Preetpal Singh will be telling you everything about the webinar. So he will start from the scratch for Android development, and he will complete ML model, machine learning model, where we will be doing some predictions on our data set. So I hope the data set is already provided to you. If it is not provided, we will put it in the description of this video. So once you watch it after the webinar, it will be available to you. So let me hand over the this platform to Mr. Preetpal Singh. So Preetpal Singh, please come. So that's all from my side. Thank you, Preetpal Singh. So today we will able to see how to make a simple Android application for a machine learning model in Google Colab.
In this, we firstly construct a machine learning model by use of Python programming, and nextly we construct a classifier for it. That is, we use binary classifier for prediction, and lastly construct a API for it using Flask framework. Flask is a web framework which is written in Python. After that, we are able to see our predictions in public URL, and lastly build our mobile application by using simple drag and drop method in MIT App Inventor. So we start, we open Google Colab. So today we make an API so that you can see output not only in Google Colab but also in public URL. So सबसे पहले तो थोड़े बहुत स्टेप्स होते हैं जब भी कोई मशीन लर्निंग मॉडल हमें क्रिएट करना होता है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ data preparation. That is how you are going to collect data, and second step is data pre-processing. That means how we define data and how data is to be clean. मतलब ये स्टेप डाटा क्लीन करने, मतलब ये डाटा क्लीन मस्ट होता है. मतलब अगर कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है तो सबसे पहले डाटा क्लीन होना चाहिए हमारा. तो थर्ड स्टेप हमारा है डाटा प्रिपेयरिंग मॉडल और ट्रेन मॉडल. मतलब कोई मॉडल चूज़ करना उसके हिसाब से. जैसे हमने ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें हम अपना बाइनरी क्लासीफायर यूज़ कर रहे हैं. सो इसमें हमारी सारी जितने भी जो हमारी हम लोग इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमें मॉडल को ट्रेन करना है यूजिंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डाटा. एंड लास्टली we check the evaluation of model or accuracy, and lastly deploy our model. So firstly we open Google Colab, new notebook. So एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. सबसे पहले हमने इसमें स्टेप्स यूज़ करने हैं. पहले तो गेट डाटा एंड एक्सट्रैक्ट डाटा, एंड सेकंड प्रिपेयर डाटा सेट फॉर मशीन लर्निंग मॉडल विद द हेल्प ऑफ डाटा क्लीनिंग, एंड लास्टली टू सेलेक्ट अ मॉडल एंड ट्रेन इट एंड चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ मॉडल फॉर बेटर प्रेडिक्शंस. एंड इसमें लास्टली हम इसका API बिल्ड करेंगे. API हमारा होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. API हम इसका फ्लास्क ngrok सर्वर यूज़ करेंगे. ngrok स्पेशली हम कहेंगे एक टनलिंग सर्वर होता है जिसमें हम आउटपुट देख सकते हैं एक पब्लिक URL में. मतलब एक तरह का लोकल URL क्रिएट हो गया था उसके लिए, जिसमें हम इसका आउटपुट कहीं भी एक्सेस कर सकते. इसका आउटपुट हम कहीं भी देख सकते हैं पूरे ग्लोब में. सो हम शुरू करते हैं फिर. तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करवाना है पांडास SPD. ये पांडास क्या करता है हमारा? पांडास हमारी डाटा क्लीनिंग लाइब्रेरी होती है जहाँ से हम ट्राई करते हैं डाटा रीड करने के लिए. मतलब वेयर वी ट्राई टू दिस इज अ लाइब्रेरी फॉर रीडिंग अ डाटा फ्रॉम CSV फाइल. और इसके बाद इंपोर्ट numpy as np. ये numpy होता है हमारा न्यूमेरिकल पाइथन, और ये हमारा यूज़ होता है वर्किंग विद एरेस. इसके बाद हमें इंपोर्ट करवाना है sklearn. sklearn हमारा इसलिए यूज़ होता है, ये इसमें जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं मशीन लर्निंग के सारे इसमें शोर होते हैं.
सो पहले हमें ये लाइब्रेरी इनिशियलाइज करानी पड़ेगी, और इसको हमें रन करने के लिए या फिर हम इसको सिंपल रन सेल कर सकते हैं, या फिर इसमें कंट्रोल एंटर दबा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमने पहले इंपोर्ट करवा लिया। तो उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ये है कि हमें डाटा सेट, जो हमें डाटा सेट इसमें लिया है उसको रीड करना है। तो इसमें एक मिनट, एक सेकेंड, इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, एक्सके लर्न है। तो रन अगेन, ओके। सो हमें फिर इसमें डाटा सेट इंपोर्ट करना है अपना। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है अपलोड का। तो हम डाटा सेट इसमें टाइटैनिक डाटा सेट यूज़ कर रहे हैं, सिंपल टाइटैनिक डाटा सेट। ये हमने अपना डाटा सेट इसमें अपलोड कर दिया। तो उसके बाद हमने डाटा सेट रीड करना है कि हमारे डाटा सेट में कौन सी फाइल्स है। तो हमने कोई पहले इनिशियलाइज लिया वेरिएबल टाइटैनिक डाटा इज इक्वल टू पी डी है, पांडास हमारा डाटा सेट को रीड करने के लिए काम आता है, रीड CSV। ये डाटा सेट का हमने नेम इसमें डिफाइन करना अपना, टाइटैनिक डॉट CSV फाइल, ओके। टाइटैनिक डाटा डॉट हेड, जो हमारा हेड होता है वो उसका मतलब होता है कि ये पहले एक बार अंदर कर दिखाता हूँ उनको। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट 5 रो मतलब डिस्प्ले कर देगा हमारी डाटा सेट की। ये सारी हमारी फर्स्ट 5 रो आ गई, और हमें अगर चेक करनी है कि फर्स्ट 2 रो, ये फर्स्ट 2 रो दिखा देगा। तो ये पहली दूसरी रो आ गई इसकी हमारे डाटा सेट की। डाटा सेट में पैसेंजर आईडी है, और इसका इसमें सर्वाइव्ड है, मतलब उसके प्रेडिक्शंस भी दे रखी है, इसकी क्लासेस दे रखी है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास के है, थर्ड क्लास के है, उस पर नेम है, जेंडर है, एज है, सिबलिंग्स, स्पाउस, पेरेंट, चिल्ड्रन, टिकट, फेयर क्या है उनका कैबिन, और अम्बार्ड हमारा है एक प्लेस है, ट्रैवलिंग प्लेस। सो ये तो हमने करवा दिया डाटा रीड। तो इसके बाद डाटा सेट के हमें कॉलम्स चेक करने हैं। तो टाइटैनिक डाटा डॉट कॉलम्स, और इसमें जितने भी सारे कॉलम्स हैं ये सारे डिस्प्ले कर देगा, जितने भी डाटा सेट में हमारे कॉलम्स हैं। ये तो काम हमारा रीड का हो गया। उसका नेक्स्ट स्टेप आता है डाटा क्लीन होना चाहिए हमारा, जब भी मशीन लर्निंग मॉडल हमें अगर बिल्ड करना है। तो लेट्स गो फॉर क्लीनिंग प्रोसेस। सो सबसे पहले तो हमें इस पर चेक करना कि कोई नल वैल्यूज़ तो नहीं है हमारे डाटा में। सो फर्स्ट चेक वेदर आई एम हैविंग नल वैल्यूज़ इन डाटा सेट और नोट। डाटा मस्ट बी क्लीन। तो इसके लिए हमें टाइटैनिक डाटा सेट डॉट इज़ नल, इज़ नल का मतलब ये हमें सारी ट्रू वैल्यूज़ देगा जहाँ पे हमारा डाटा प्रेजेंट नहीं है। इज़ नल डॉट सम हमारा मतलब सारे हम कह सकते हैं सम जो है हमारा इट विल गिव यू इंडिविजुअल कॉलम्स वेयर एवर यू आर हैविंग नल वैल्यूज़। मतलब ये हमारा अलग अलग कॉलम्स की
लिस्ट बना देगा जिसमें हमारी सीधी सारी नल वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमने रन किया तो ये देखो ये सारे कॉलम्स टोटल इन्होंने इसमें टोटल एवरेज आ गई। सम का मतलब एवरेज इसने क्रिएट कर दिया। ये एज में हमारा 177 नल वैल्यूज़ है, कैबिन में 687 नल वैल्यूज़ है और एम्बार्क में 2 नल वैल्यूज़ है। सो हमने देख लिया कि जो डॉट इज नल है वो उसका मीन्स होता है एम्प्टी वैल्यू, मतलब कितनी इसके अंदर एम्प्टी वैल्यूज़ हैं। और जो हमारा डॉट सम है यहाँ पे वो उसका मतलब है कि ये कैलकुलेट करता है ऑल द नल वैल्यूज़ इन ईच एंड एवरी कॉलम्स। सो वी नीड टू हैव वेरी क्लीन डाटा। उसके बाद अगर मैं इन्फो देखनी है, मतलब अपने डाटा सेट की सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो टाइटैनिक डाटा डॉट इन्फो, ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। कि इसमें 714 वैल्यूज़ इसमें प्रेजेंट है और बाकी की इसमें प्रेजेंट नहीं है, वो हमारी इसमें कैलकुलेट होगी हमारी नल वैल्यूज़ में। सो हमें डाटा क्लीन चाहिए तो उसके लिए हमें पहले हम देख रहे हैं इससे मिसिंग वैल्यू मतलब प्रेजेंट है ज़्यादा, सो हमें इसको निकालना पड़ेगा। ये जो हमारा वी सी मोर नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ प्रेजेंट इन कैबिन, कैबिन में सबसे ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ है, सो हमें इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। सो ड्रॉप के लिए हम यूज़ करेंगे टाइटैनिक डाटा डॉट टाइटैनिक डाटा ड्रॉप हमें कैबिन को ड्रॉप करना है, तो सी पर कैबिन एक्सिस 1 हमने इसलिए लिया क्योंकि वो डिनोट कर रहा है कॉलम्स को। एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस 1 हमारा कॉलम्स के लिए होता है और एक्सिस अगर 0 है तो वो रोज के लिए होता है। और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इसका इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है कि ये जो हमारा अप्लाइड है वो परमानेंट हमारा डाटा सेट पे अप्लाइड हो जाएगा ओरिजिनल डाटा सेट में। तो उसको रन करते हैं हम। तो ये तो हमारा हम रिमूव हो गया। अगर उसको फिर से चेक करना है तो हम इनसे सीधा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको यहाँ से, कॉपी, इसको फिर पेस्ट करते थे कि हमारा ओरिजिनल डाटा सेट से रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये देखो इसमें हमारा जो कैबिन वाला ऑप्शन, कैबिन वाला कॉलम था वो ड्रॉप हो गया, उसको हमने निकाल दिया, तो डाटा हमारा क्लीन हो गया। अब रह गया हमारा एज कॉलम। ठीक है, इसके बाद एज कॉलम में क्या होएगा, नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज़ फिलिंग दिस एज वैल्यूज़, बिकॉज हम इसको एज को ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मेन कंसेप्ट तो सो माई मेन कंसेप्ट इज़ टू फाइंड आउट द पर्सन इज सर्वाइव और नॉट, वो तो एज के अकॉर्डिंग ही होएगा। जो एज हमारा प्राइमरी पर्सन है, मतलब एज हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यूज़ होएगा, तो हमें एज को क्या करना पड़ेगा, उसकी नल वैल्यूज़ को फिल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, नल वैल्यूज़ को हम मीन उसका बाकी वैल्यूज़ का मीन लेके इसको फिल कर देंगे। सो हम इसमें लिख देता हूँ टू फिल वैल्यू ऑफ एज कॉलम टाइटैनिक डाटा एज कॉलम एज कॉलम डॉट फिल
नल वैल्यूज़। ठीक है, ये एफ फिल एन है, फिल नल वैल्यूज़ को। फिल नल वैल्यूज़ किसकी? डाटा सेट के एज वाले कॉलम की। डाटा सेट के एज वाले कॉलम की। किससे फिल करनी है हमने? इसके मीन से। बाकी मतलब जितनी भी जो डाटा सेट के मीन है उससे इसकी वैल्यू से हमें उसी बाकियों की वैल्यू से हमें मीन से हमें फिल करनी है। मीन और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, मतलब कि हमें ये अप्लाई करना अपने ओरिजिनल डाटा सेट पे। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सो रन करते हैं। ठीक है, अब चेक करने, ये तो हमारा एज की वैल्यू फुल होगी। अब चेक करते हैं कि कोई नल वैल्यूज तो नहीं है इसमें। टू चेक नल वैल्यूज। टाइटैनिक डाटा डॉट इज नल डॉट सब। यही जो हमने पहले यूज़ किया था, सॉरी इसमें। ओके, सो रन करते हैं। सो देखो, ये एज वाली वैल्यूज़ तो सारी फिल होगी बाकियों के मीन से, तो इसको भी, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिमूव करना है, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। टू ड्रॉप नल वैल्यूज, ड्रॉप ऑल नल वैल्यूज। टाइटैनिक डेटा इज इक्वल टू ड्रॉप ऑल नल वैल्यूज। ड्रॉप करने का मतलब है ड्रॉप ऑल नल वैल्यूज इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, मतलब ये हमारा अप्लाइड हो जाएगा ओरिजिनल डाटा सेट पे। तो रन करके देखते हैं। एक मिनट, ड्रॉप एन ए। ओके, सो इसके बाद चेक कर लेते हैं कि ये रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, देखो अब हमारा डाटा जो है एकदम क्लीन है। सो नाउ एवरी डाटा इज फिल, आवर डाटा इज क्लियर और क्लीन। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू सी डाटा सेट अगेन। हम डाटा सेट फिर देखते हैं अपना। अब तो क्लीन हो गया डाटा सेट में। हमें जो हम डाटा सेट जो क्लासीफायर यूज़ कर रहे हो, बाइनरी क्लासीफायर है, उसमें बस न्यूमेरिक वैल्यूज यूज़ होएगी। सो जो जैसे हमारा जेंडर हो गया, मेल या फीमेल है, तो उसको हम न्यूमेरिक वैल्यू में लॉजिक लगा के 1 या 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही हम इसको एम्बाग को भी हम लिख सकते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। और वैसे ही हम इसको भी पी क्लास को भी लिख सकते हैं, क्या वो फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का है, थर्ड क्लास का है। तो इसके लिए हमें पहले तो डमीज क्रिएट करनी पड़ेगी। सो हमारे पास थोड़ी कैटेगरीज है पैसेंजर में, पैसेंजर क्लास में। जैसे फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। वो उसका जेंडर, वो बाकी जेंडर्स भी है, वो मेल है, फीमेल है। फॉर दिस वी हैव टू जनरेट डमीज एंड आई वांट न्यूमेरिकल डाटा इन आवर डाटा सेट। सो आवर जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है वो एक्सेप्ट करेगा ओनली न्यूमेरिक इनपुट्स। सो हमें स्ट्रिंग डाटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द यूज़ ऑफ सिंपल पांडास लाइब्रेरी। वैसे तो मशीन लर्निंग में तो हम वन नोट एनकोडिंग यूज़ कर सकते हैं, पर हम सिंपल मेथड यूज़ करेंगे पांडास लाइब्रेरी से। सो
टू जनरेट डमीज, या फिर हम बोल सकते हैं कैटेगरीज। सबसे पहले तो हम जेंडर को कैटेगरीज कर देते हैं दो टर्म में, या फिर जीरोस का मतलब हो गया या फिर फीमेल है, वन का मतलब होगा मेल, जीरोस या वन की फॉर्म में। तो पी डी डॉट पांडास की एक लाइब्रेरी होती है गेट डमीज के नाम से, इसमें अपना वालेगी ये गेट डमीज, किसमें टाइटैनिक डेटा, कौन से कॉलम है वो डिस्प्ले कर दिया, और ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। चल पहले आपको इससे करके दिखा रहा हूँ। अगर हमें इसका फर्स्ट टू रोज देखनी है तो उसके लिए हमें बताया था कि हम यूज़ करते हैं ऐड फर्स्ट टू रोज टू लिख दिया। तो ये देखो अब ये मेल या फीमेल, मेल अगर मेल है तो 1 आ गया, फीमेल है तो 0 आ गया, और अगर फीमेल है तो 1 आ गया, मेल है तो 0 हो गया। ठीक है। और अगर हमें एक ही कॉलम चाहिए तो उसके लिए हमें फिर ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, ये पहला कॉलम रिमूव हो जाएगा। तो हम लिखते थे ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या आएगा, हमारा जो पहला जो ये कॉलम आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा, बस एक ही कॉलम से हमें पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। मतलब पहला मेल है 1 तो दूसरा 0 होगा तो वो फीमेल हो गया, पहला मेल नहीं है तो दूसरा 1 है तो मतलब ये फीमेल हो गया। ठीक है, ये तो हमारा पहले तो जेंडर क्रिएट हो गई डमीज। सो हम नेक्स्ट अब हमारी क्लास आएगी पी क्लास, पैसेंजर क्लास। So in passenger class we want to see only in zeros or ones form because it is a clear format। मतलब जीरोस और वन से हमें एक क्लियर दिखेगा। सो पी क्लास ये हम जनरेट कर देते हैं अपने आप से, पी डी सिंपल पांडास लाइब्रेरी गेट डमीज टाइटैनिक डेटा सेट, कौन सा कॉलम है पी क्लास अपना वालेगा पी क्लास, और ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। और हमें फर्स्ट 2 रोज देखनी है इसकी, तो डॉट हैड फर्स्ट 2। सो इसमें बता दिया कि ये हमारा जो है थर्ड क्लास का है, और इसमें हमारा ये है फर्स्ट क्लास का है, मतलब एक तरह की कैटेगरीज बन गई। और इसके बाद हमारा एम्बार्क भी है, एम्बार्क मतलब प्लेस ऑफ ट्रैवलिंग, एम्बार्क इज इक्वल टू पी डी डॉट गेट डमीज टाइटैनिक डेटा, एम्बार्क ये तो अपना भी आ जाएगा, एम्बार्क ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। और फर्स्ट 2 रोज देखने के लिए एम्बार्क डॉट हैड फर्स्ट 2 रोज।
डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, क्यू है हमारा साउथम्पटन, ये हमारी प्लेस ऑफ ट्रैवलिंग होगी, ये भी डमीज बन गई। सो लास्ट में हमें क्या करना है, इसको जितनी हमने डमीज क्रिएट की है ये अलग से बनाई हुई है हमने, जैसे अम्बाक है ये अलग से बना रखा है, तो लास्ट में हमें इसको कंबाइन करना है और उसको अप्लाई, मतलब उसको हमें अपेंड करना है, ओरिजिनल डाटा सेट में। ये अपने ओरिजिनल डाटा सेट है, कहाँ गया ये रहा। इसमें हमें इसको ऐड करना है, तो ऐड के लिए हमें यूज सिंपल ऐड के लिए भी कॉन्कैटिनेशन करना पड़ेगा। ऐड के लिए कॉन्कैटिनेशन का मतलब है कि कंबाइन करना। टाइटैनिक डाटा इज इक्वल टू पाना डॉट कॉन्कैट, किसको डाटा सेट में ऐड करना है, टाइटैनिक डाटा सेट में। किसको ऐड करना है, जो हमने बनाया है अभी, PCI और एम्बार्क बनाया हमने। और एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब कि ये हमारे कॉलम्स में ऐड करना है इसको हमने, तो एक्स इज इक्वल टू 1 लिख दिया, ये हमारे कॉलम्स में ऐड हो जाएगा। तो अगर हमें डिस्प्ले करना है कि क्या कैसा, मतलब डिस्प्ले में डाटा सेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो डाटा डॉट हेड, ये देखो अब इसमें जितने ही हमने बनाए थे कैटेगरी सारी इसमें शो हो रही है। ये मेल होगी, मेल में बता देगा 1 मतलब मेल, 0 है तो फीमेल, और कैटेगरी बता दी 2 और 3 है तो मतलब 0 नहीं है 1 है, वैसे इसने क्यू और एस पर बता दिया 1 है। एक हमारी कैटेगरी शो होगी। तो अब हमने क्या करना है, ये तो हमने कैटेगरीज बना दी न्यूमेरिक्स में, तो जो दूसरी थी उसको हमने ड्रॉप करना है, जैसे ये वाली है और इसको है, इसको हमें रिमूव करना है डाटा सेट से। ठीक है, और सो लास्टली वी नीड नॉट वांट ओरिजिनल फाइल्स, ये ओरिजिनल फाइल्स हमारी एज होगी, इसको हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि हमने क्रिएट कर दिया अलग से कैटेगरीज बना के न्यूमेरिक्स की फॉर्म में। ठीक है, सो हम इसको डायरेक्टली ड्रॉप कर देंगे। सो हम ध्यान रखेंगे ड्रॉप ध्यान से करें। सो इसको ड्रॉप करने के लिए टाइटैनिक डेटा डॉट ड्रॉप, ड्रॉप क्या करना हमने पहले, जेंडर करना अपना आउटपुट को, फिर उसके बाद हमने करना है एम्बार्क, मतलब जो ओरिजिनल है, क्योंकि ओरिजिनल की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने अब डमीज क्रिएट कर लिया अपने एम्बार्क, और उसके बाद हमारा पी क्लास। इसमें हमें नेम की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि वो हमारी मेजर स्ट्रिंग्स है हमारी, वो हमें पास जो हमारा मेन कंसर्न है वो न्यूमेरिक्स पे है, तो हम उसको ड्रॉप कर देते नेम को भी। नेम और हमें टिकट से भी हमें कोई मतलब नहीं है इसमें, हमें मेन तो उसमें चेक करना है कि वो सर्वाइव है कि नहीं है। हमारा मेन टारगेट है इसमें मॉडल में कि जो पैसेंजर थे वो सर्वाइव है कि अलाइव है, सर्वाइव और नॉट सर्वाइव। टिकट रिमूव कर दिया, और पैसेंजर आईडी हम रिमूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसेंजर आईडी और सीरियल नंबर, तो उससे पैसेंजर आईडी और सीरियल नंबर
उसी से हमारा काम बन जाएगा। तो उसी को रिमूव कर देते हैं हम। टिकट पैसेंजर आईडी की जरूरत नहीं है। पैसेंजर आईडी और कॉलम्स है, कॉलम से बताना तो एक्स इज इक्वल टू 1 और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ओके, और हमें अब देखना इसका हेड, मतलब फर्स्ट 5 रो देखनी है। तो हेड फर्स्ट 5 रो शो हो जाएगी, ये देखो फर्स्ट 5 रो आ गई। अब ये हमारा सारा न्यूमेरिक डाटा हो गया, मतलब इसमें कोई स्ट्रिंग यूज़ नहीं हुई, सारा न्यूमेरिक्स, सारा इसमें न्यूमेरिक्स डाटा शो हो गया। सो ये तो हमारा डाटा एकदम क्लीन हो गया, डाटा एकदम क्लियर हो गया जो हमें मशीन लर्निंग मॉडल में यूज़ करना है। सो नेक्स्ट वी गो फॉर मशीन लर्निंग मॉडल। तो मशीन लर्निंग मॉडल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपना इनपुट सेट करना पड़ेगा, जिसमें हमें पहले तो अपने एक्स और वाई सेट करने पड़ेंगे। एक्स हमारा होता है इनपुट, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं उसको, जैसे जितने हमारे कॉलम हो गए। और वाई हमारा टारगेट, हमारा टारगेट इसमें क्या है, जानना है कि सर्वाइव्ड है कि नहीं है। इट इज़ आवर टारगेट। एंड उसके बाद हम ट्रेन करेंगे टेस्टिंग और उसको स्प्लिट करेंगे बाद में डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में। और उसको उसमें मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कर देंगे। और बस पहले हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा वाला पार्ट क्रिएट करना है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा। पहले तो हमने अपना एक्स और वाई, एक्स का मतलब इनपुट, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइटैनिक डाटा, उसमें से हमें ड्रॉप का करना है, हमें सर्वाइव, मतलब बाकी सारे रहेंगे बस सर्वाइव नहीं रहेगा, क्योंकि सर्वाइव हमारा टारगेट है। तो सर्वाइव को हम ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप सर्वाइव। और एक्स इज इक्वल टू 1 इसलिए क्योंकि वो कॉलम में ऐड है। तो कॉलम के लिए हमें बताया था कि एक्स इज इक्वल टू 1 यूज़ करते हैं। और वाई हमारा है हमारा टारगेट हमारा है फाइंड करना कि वो सर्वाइव है कि नहीं है। टाइटैनिक डाटा हमारा टारगेट है सर्वाइव। ओके, और उसके बाद हमें इसको, ये तो हमारा इनपुट और हमने सेट कर दिया इनपुट और टारगेट। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले हमें इसको sklearn से इंपोर्ट करना पड़ेगा, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, ये रहा मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्पिरिट, मतलब ट्रेन टेस्टिंग में इसको स्पिरिट करना पड़ेगा। इसको रन करते हैं। ओके, सो उसके बाद हमने इसको स्प्लिट करना इसको, इसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा में। ट्रेनिंग डाटा मतलब इसको कह सकते हैं कि ये हमारा लर्न कर ले, इट शुड लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग डाटा एंड प्रिडिक्ट फ्रॉम टेस्ट डाटा। मतलब पहले ट्रेन करेगा, फिर उसका प्रिडिक्ट करेगा टेस्ट डाटा से।
that is we go for first X train and Y train. So X train, X test, और Y train, Y test. ट्रेन टेस्ट स्पिल, ये हमने पहले इसको इंपोर्ट करवाया था, उसको यूज़ कर रहे हैं हम डाटा डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में स्प्लिट करने के लिए। इनपुट ले लिया x और हमारा y ले लिया टारगेट, और टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.3। टेस्ट साइज का होता है हमारा, मतलब इसमें हम टेस्ट साइज 0.3 डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली 30% ऑफ द डाटा विल बी ट्रेन। बस इसमें 30% हमारा डाटा ट्रेंड होएगा, बाकी वो टेस्ट डाटा से हमारा प्रेडिक्शन फाइंड कर लेगा। 30% एंड रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 1। random state is equal to 1 from sklearn। ये तो हमारा पार्ट ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हम इंपोर्ट कराएंगे अपना मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। एल कैपिटल आएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फिर हमने अपना मॉडल कॉल किया, लॉग मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और इसके बाद हमने डाटा को, इसके बाद हमने फिट कर दिया डाटा को एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में। हमेशा हम याद रखेंगे जब भी फिट करें डाटा को, तो हमें पहले ट्रेनिंग वी गो फॉर ओनली ट्रेनिंग डाटा, दैट इज़ एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। लॉग मोड इज इक्वल टू डॉट फिट, इसको फिट करेंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में, क्योंकि पहले हमें ट्रेन कराना उसको एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। सो हमारा डाटा, हमारा मॉडल एकदम करेक्ट है, और ये अपना इसकी वैल्यू स्टेट हो गई थी है, ये डिफाइंड होती है पहले से ही। तो इसके बाद आफ्टर डैट हमें इसकी ये हमें मॉडल तो हमने क्रिएट कर दिया, और उसके बाद हमें प्रेडिक्शन करनी है कि ये जो मॉडल है हमारा प्रेडिक्शन सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। प्रेडिक्शन हमेशा हमारा टेस्ट डाटा पे क्रिएट आएगी। प्रेडिक्शन
इक्वल टू लॉग मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करना हमने किस कौन सा एक्स डाटा एक्स टेस्टिंग डाटा पे हमेशा प्रिडिक्ट होती है, क्योंकि पहले डाटा हमारा ट्रेन होएगा 30%, तो उस 30% के बाद उसी को देख के हमारा ट्रेनिंग पार्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर हम टेस्टिंग करेंगे कि हमारी प्रेडिक्शन जो उसने ट्रेनिंग की है वो प्रेडिक्शन सही आ रही कि नहीं आ रही, चेक करने के लिए। तो अब हम चेक करेंगे हम जो हमने मॉडल क्रिएट किया है इसकी एक्यूरेसी फाइंड करेंगे कि वो प्रेडिक्शन कितने, मतलब एक्यूरेसी हम कह सकते हैं कि मॉडल की प्रेडिक्शन बताने के लिए होता है कि मॉडल हमारा कैसा, मतलब कितना परसेंटेज हमारा मॉडल वर्क कर रहा है। तो फॉर एक्यूरेसी फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स एक्यूरेसी स्कोर, हमें एक्यूरेसी स्कोर फाइंड करना है अपना डाटा मॉडल का। तो प्रिंट एक्यूरेसी स्कोर एक्यूरेसी के लिए हमेशा एक्यूरेसी विल गिव योर इवैल्यूएशन देगा हमें कि हाउ मच योर मॉडल हैज़ बी लर्न, मतलब कितना हमारे मॉडल ने लर्न किया अभी तक कुछ। सो इसमें हमारा वाई टेस्ट आएगा, टेस्टिंग डाटा जो हमारा टेस्ट डाटा है, और ये प्रेडिक्शन जो हमने कितना जो प्रेडिक्ट किया हमने टेस्ट डाटा से प्रेडिक्शंस। और इंटू 100% फाइंड करने के लिए। सो देखिए, तो 83.14% हमारा मॉडल एक्यूरेसी आई है हमारी मॉडल की। सो बेटर है, लेकिन 80 से above होनी चाहिए परसेंटेज हमारी अच्छे मॉडल के लिए। सो अब हम चेक करते हैं कि प्रेडिक्शंस जो हमारी प्रेडिक्शन है इसके हिसाब से ये जो डाटा हमारा, एक सेकेंड, ये डाटा जो हम इसको डाल के देखेंगे, ये नहीं, ये वाला जो भी अपने प्लेन डाटा क्रिएट किया था ये वाला, इसकी वैल्यू हम डाल के देखेंगे इसमें कि जो ये वैल्यू है उसके हिसाब से जो आंसर है वो मैच हो रहा नहीं हो रहा। अगर मैच हो रहा है तो उसका मतलब जो हमारा मॉडल है वो बेस्ट एक्यूरेसी, मतलब वो बेस्ट रिजल्ट दे रहा हमें। सो उसके लिए प्रेडिक्शंस इज इक्वल टू लॉग मॉडल था हमारा, उसका मॉडल का नाम, उसमें हमने प्रेडिक्ट करना है, मतलब यही एक्स टेक्स्ट की जगह बस हम ऊपर वाला डाटा की इंफॉर्मेशन लिख देंगे चेक करने के लिए कि डाटा रिज़ल्ट जो हमारा आ रहा है मैच हो रहा है उससे। अगर मैच हो रहा तो जो हमारा मॉडल है एकदम सही वर्क कर रहा है। सो ये जो हमारा एरेस की फॉर्म में जो भी मॉडल होता है हमारा वो एरेस एक्सेप्ट करता है। तो इनपुट दे देते हैं हम 22.0, यहाँ से मैच करके लिख देते हैं। पहले कॉलम की वैल्यू लिख देते 22.0, और सिबलिंग्स, स्पाउस, पेरेंट, चिल्ड्रन, ये फेयर हो गया, ये मेल हो गया, ये पैसेंजर क्लास हो गया, और ये हो गया हमारा प्लेस ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है,
22.0 और वो आ गया 1, 22.0 कोमा से सेपरेट होगा और 1 और 1 का 0 का 7.25 0 7.25 00 और उसके बाद है हमारा 10101 और 1। ये हमने इनपुट दे दिया। अब ये इसको रन करके चेक करके देखेंगे जो हमारी प्रेडिक्शन आ रही है वो करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही। तो रन किया, उसको चेक करने के लिए हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा प्रेडिक्शन आउटपुट के लिए प्रेडिक्शन। अब उसको रन करते हैं। सो एरे 0 का मतलब हमने इसमें लिखा हुआ है, ये 0 का मतलब कि वो सर्वाइव्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रेडिक्शन है वो करेक्ट बता रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मॉडल है वो करेक्ट वैल्यू शो कर रहा है। तो मॉडल हमारा तैयार हो गया। तो इसके बाद हमें प्रेडिक्शन चेक कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें इसका एपीआई क्रिएट करना है। मतलब एपीआई हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब एपीआई इट एक्ट एज अ क्लाइंट, एक क्लाइंट है बिटवीन यूज़र और सर्वर के बीच में। सो फॉर बिल्डिंग एपीआई वी हैव टू इंस्टॉल फ्लास्क। पहले फ्लास्क हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ngrok pip ये हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। फ्लास्क ngrok बताया था हमें सर्वर होता है, यूज़ होता है कि उसको पब्लिक होस्ट में, पब्लिक यूआरएल में चलाने के काम होता है। आजकल वाइडली यही यूज़ हो रहा है ngrok सर्वर। सो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे तो मैंने पहले से किया हुआ है, ये ऑलरेडी सेटिस्फाई मैंने किया हुआ है, तो मेरे में शो हो रहा है जैसे डाउनलोड होता है। सो हमने इंस्टॉल कर लिया। सो इसके बाद हमने क्या करना है, इसका एपीआई क्रिएट करना है। तो पहले हम फ्लास्क पैकेज यूज़ करेंगे फ्रॉम फ्लास्क ngrok आएगा। फ्लास्क ngrok इसमें से हमें इंपोर्ट करवाना है रन विद ngrok। मतलब ये क्या करेगा, ये हेल्प लेगा ngrok से एंड उसको रन करेगा सर्वर में। ये हमने पैकेज का इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी रन विद ngrok सर्वर में उसको यूज़ करने के लिए। और इसका फ्रॉम फ्लास्क इनसे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा फ्लास्क पैकेज में, फ्लास्क लाइब्रेरी और JSONify हमें इसलिए करा क्योंकि जो भी हमारा डाटा होता है ना ब्राउज़र में वो JSONify की फॉर्मेट में होता है। JSONify की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। डैट इज़ ये हमारी डिक्शनरी की फॉर्म में होता है। जैसे हम अमेज़ोन हो गया, अमेज़ोन की अगर हमने मतलब इसका मतलब हो गया, कह सकते हैं हम कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ट्रांसफ़र करना है हमें। जैसे अमेज़ोन ऐप होगी, अमेज़ोन वेबसाइट होगी, अगर उसके होम में जाना है तो हम लिख देते हैं Amazon/home, तो उसकी लॉगिन में जाना, फिर स्लैश लिख के फिर हम लॉगिन कर देते हैं। तो ये JSONify इसलिए काम आता है। सो इसके बाद हमने ऐप अपनी एक एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करनी है। इसको हमने इनिशियलाइज़ करा लिया पहले, तो इनपुट उसके ऐप फ्लास्क पैकेज, इसमें पहले इनपुट करवा लिया अपना नेम
ये रन विद एन जीरो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, रन विद एन जीरो रन कर दिया नेम को इनिशियलाइज कराने के लिए। सो इतना क्लियर सबको। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने फ्लास्क एनजीरोक से इसको इंपोर्ट करवाया रन विद एनजीरोक रन करने के लिए सर्वर पे। और उसके बाद हमने फ्लास्क हमने इसमें से लाइब्रेरी इसकी इंस्टॉल करी, इसमें इंपोर्ट करवाई। और JS25 बताया था जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इंडेक्शन के लिए रूटिंग, ये मेन काम रूटिंग के लिए काम आता है इसका डिक्शनरी फॉर्म में। सो और ये ऐप इसलिए किया कि हमें जो वी हैव टू क्रिएट ऐप टू मेक फॉर रूटिंग, सो जिसको हम चला पाए पब्लिक URL में। सो और इसको रन विद एन जीरो इसलिए लिखा, जो मैं ऐप बना रहा हूँ अपनी, तो उसको रन करने के लिए एप्लीकेशन को, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा रन विद एन जीरो इनिशियलाइज कराने के लिए इनको। रन विद एन जीरो इसका मतलब है, लिख देता हूँ, स्टार्ट व्हेन द ऐप इज़ रनिंग, ऐप इज़ रनिंग। ये तब स्टार्ट होगा जब ऐप हमारी रन करना स्टार्ट होगी। तो उसके बाद हमें रूटिंग प्रोसेस इसकी स्टार्ट करनी है, ऐप की रूटिंग प्रोसेस, ऐप डॉट रूट। इसमें मैं रूटिंग दे रहा हूँ, मतलब ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था अमेज़ोन का कि अगर हमें एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जाना है तो उसके लिए से हम अमेज़ोन के लॉगिन पेज में जाना है। अगर डायरेक्ट लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Amazon/home/login। तो ये एक तरह की इसको रूटिंग बोलते हैं हम फ्लास्क की लैंग्वेज में। तो उसकी रूटिंग हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, जो भी हमने इनपुट्स लिए इसके, तो हम इस पर डिफ़ाइन करते थे अपने इनपुट्स। और इसमें इनपुट्स का था एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी इनपुट्स लेते थे उसके साथ हमने उसके फॉर्मेट के साथ लिखना है कि डाटा टाइप कौन सा उसका। तो उसकी रूटिंग स्टार्ट करते हैं। तो रूटिंग के लिए जैसे हमने पहला रूटिंग के लिए स्लैश हमारा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने स्लैश लिखना है पहले, स्लैश से पता चलेगा कि रूटिंग है ये। और इंट इसका डाटा टाइप हो गया एज का, मतलब ये है हमारा डिक्शनरी की फॉर्म, ये डिक्शनरी की फॉर्म बन गई हमारी। और मैंने अभी बताया था कि ये जो हमारा JS25 होता है वो हमारा डिक्शनरी की फॉर्म में होता है। तो हमें रूटिंग दे दी डिक्शनरी की फॉर्म में, इंट एज, और इसके बाद हमने नेक्स्ट करैक्टर दे दिया इसका, इसको क्लोज कर दिया। इंट सिबलिंग्स स्पाउस, इसमें हमें चॉइस लिखनी है, या फिर सिबलिंग्स है या फिर स्पाउस है। तो सिबलिंग्स या फिर स्पाउस, ओके। तो उसके बाद हमारा आ गया पेरेंट्स और चिल्ड्रन, वो भी टीचर वैल्यू है, या फिर 0 या 1, वो 0 या 1 इंटीजर वैल्यू होगी। इसको डिफाइन करते हुए इन पेरेंट्स या फिर चिल्ड्रन, इसको क्लोज कर देते हैं। ये ऐसी हमारी रूटिंग कंटिन्यू चलती रहेगी इनपुट्स के लिए। और फेयर हो गया, जो हमारा प्राइस फेयर मतलब प्राइस हो गया टिकट का, वो तो हमारा जो है फ्लोट में रहेगा, पॉइंट में। जैसे दिखाया था एक बार, जो हमने ऊपर लिखा था, इसमें फेयर हमारा पॉइंट्स में आ रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें फ्लोट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम फ्लोट लिख लेते हैं, फ्लोट।
इसको कर दीजिए क्लोज। अब नेक्स्ट वैल्यू होगी जेंडर। जेंडर हमारा इसमें मेल या फीमेल आएगा, तो उसके लिए हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ले सकते हैं जेंडर। और इंट पैसेंजर क्लास, क्लास 1 है, 2 है, 3 है, कौन सी क्लास है पैसेंजर की, उसको क्लोज कर देते हैं। अब लास्ट वाला बचा है प्लेस। प्लेस का भी हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम डायरेक्ट रख सकते हैं। प्लेस ये, और ये हमारा होगा क्रिएट, ये हमारी रूटिंग क्रिएट होगी। सो डन विद आवर रूटिंग। सो नाउ आई डिफाइन सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ फंक्शन यूजिंग पाइथन। यही चीज़ मैं पाइथन से भी कर सकता हूँ फंक्शन यूज़ करके, और इस फंक्शन में हम सब डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर हमें फंक्शन पाइथन का यूज़ करके फंक्शन यूज़ करके दिखाऊँ डिफाइन, इसमें मैंने फंक्शन का नाम ले लिया होम। फंक्शन नाम कुछ हो सकता है, पहला ले लिया एज, फिर इसका सिबलिंग्स और स्पाउस, फिर पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ठीक है, और उसका फेयर, फिर जेंडर आ गया, की क्लास, और फिर आ गया प्लेस। ठीक है, ये यही चीज़ मैंने नीचे डिफाइन कर दी, फंक्शन के थ्रू करके दिखाता हूँ। सो पहले इसमें मैंने एम्प्टी एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, बताता हूँ एक मिनट। ये हमने लिस्ट इसलिए क्रिएट किया है, सो ईच एंड एवरी वैल्यू शुड बी डिफाइंड हियर। मतलब ये कि जिसमें कोई भी वैल्यू जो है ना उसमें इसमें ड्रॉप कर सकते हैं एम्प्टी लिस्ट में। और इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो है वैल्यू एज होगी, सिबलिंग स्पाउस होगी, पेरेंट चिल्ड्रन हो गया, फेयर हो गया, इसकी वैल्यू डिफाइंड है, मतलब इसकी वैल्यू ना पहले से न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसको मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ। और जेंडर की क्या है, जेंडर में क्या है कि ये हमारी कैटेगरीज, इसमें सब कैटेगरीज बनी है, इसमें भी, इसमें हमने कैटेगरीज बनाई थी, इसमें भी हमने कैटेगरीज बनाई थी, इसमें भी कैटेगरीज बनाई थी। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। पहले तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके। असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या आएगा, यही वैल्यूज़ हमारी इसमें प्लेस हो जाएगी। ये हमने किस लिए बनाया था, ये बनाया था हमने कि जितनी भी सारी वैल्यूज़ है इसमें ड्रॉप हो जाएगी। तो हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर क्रिएट कर दिया, उसमें वैल्यू डाल दी हमने, कौन सी वैल्यू थी, एज की, और सिबलिंग और स्पाउस, और पेरेंट्स और चिल्ड्रन, और फेयर। ठीक है, बस यहाँ तक वैल्यू थी जो डिफाइंड हमारे पहले से। इसको हमने सीधा डायरेक्ट इस पर पुट कर देना है। और ये इसकी हमने कैटेगरीज जनरेट की थी, इसकी भी की थी और उसकी भी क्रिएट की, तो उसके लिए हमें कंडीशन पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो हमने पहले तो इसको पुट कर दिया लिस्ट में अपनी। तो अब उस पर कंडीशन पुट होएगी, इफ़ जेंडर डॉट केस फॉल्ट इज इक्वल टू एम।
अभी हमने कंडीशन यूज़ करी है जेंडर के लिए, मतलब जेंडर के लिए कि हम मेल या फीमेल है। केस फोल्ड का मतलब होता है चाहे हम कैपिटल में लिखे या चाहे हम स्मॉल 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 में लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए हमने केस फोल्ड यूज़ कर दिया उसको, उससे कोई एरर नहीं दिखाएगा। तो इसमें हम किया, अगर वो मेल है तो हम इसमें 1 पुट करवा देंगे, मतलब हमने लॉजिक बनाना उसका, हमने 1 पुट करवा दिया। ओके, और अगर नहीं है, अगर वो फीमेल है एल्स, तो हमने क्या कर दिया, पी प्लस इज इक्वल टू 0, ये हमने कंडीशन बना दी कि अगर 1 है, अगर वो मेल आया तो 1, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर वो मेल नहीं आया, एफ फीमेल आया तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये हमने कंडीशन बना दी जेंडर के साथ, और वैसे ही हमने पी क्लास के साथ भी करना है, वैसे हमने प्लेस के साथ भी करना है। तो अब हम करते हैं पैसेंजर क्लास के साथ, पी क्लास के साथ। इफ़ पी क्लास इज इक्वल टू 2, अगर वो सेकेंड क्लास का है तो P प्लस, एक में समझाता हूँ, प्लस 1, 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो सेकंड क्लास का है तो सेकंड में 1 आ जाएगा, थर्ड में 0 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट नोट करता कि है, मतलब एक बूलियन वैल्यू क्रिएट होगी, 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी सेकंड क्लास के लिए। हम क्रिएट करते हैं थर्ड क्लास के लिए, इसकी तीन कंडीशन यूज़ होगी, इसमें एलिफ लेंगे, मतलब इसे फर्स्ट क्लास भी आएगा, सेकंड क्लास भी आएगा, थर्ड क्लास भी आएगा। सेकंड ले लिया, अब हम यूज़ करेंगे थर्ड क्लास, इज इक्वल टू, कंपेयर करना हमें 3, तो अगर थर्ड क्लास का है तो फिर पहला वाला 0 आ जाएगा, और लास्ट वाला थर्ड क्लास वाला 1 आ जाएगा, 0,1। ओके, और एल्स में क्या लिख देंगे, अगर वो फर्स्ट क्लास का है तो सीधा डायरेक्ट ले देंगे 3 प्लस इज इक्वल टू 0, मतलब ना वो सेकंड का ना वो थर्ड का है, तो वो किसका होगा, फर्स्ट का। ये हमने कंडीशन इसकी ड्रॉ कर दी। अब ये केस हो गया, अब हमारा केस रह गया है, लास्ट केस है हमारा किसका, प्लेस का। अब प्लेस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन लेनी पड़ेगी, इफ़ प्लेस इज इक्वल टू, केस फोल्ड आएगा क्योंकि इसमें भी कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी है, केस फोल्ड इज इक्वल टू क्वींसटाउन, ये प्लेस का नाम है। अगर इसको कैपिटल में लिखे कोई, उससे कोई दिक्कत नहीं देगा हमें हमारा आउटपुट, ये हमें इसलिए ड्रॉ किया है केस फोल्ड। केस फोल्ड का मतलब ये क्या, अगर हम इसमें अगर गलती से कैपिटल भी लिख दे तो उससे हमारा आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसमें P प्लस, जैसे ऊपर किया था सेम ऐसे नीचे हो जाएगा, P प्लस इज इक्वल टू 1 और 0। सो वैसे ही एलिफ कंडीशन लगा देंगे, प्लेस इज इक्वल प्लेस डॉट केस फोल्ड इज इक्वल टू साउथहैम्पटन, बिल्कुल सेम ऊपर वाला लॉजिक लगाया हमने,
और ये होगा 0 और 1। और लास्ट में ऐसे करेंगे एल्स, ये लास्ट हमारा पी प्लस इक्वल टू 0 0, और ये हमारा यहाँ फिनिश हो गया कंडीशन वाला काम। अब इसके बाद हमें जो हमने अभी देखा था ऊपर, जो इसमें रिज़ल्ट आया था, ये आया था एरे की फॉर्म में। तो हमें इसमें एरे क्रिएट करना पड़ेगा, नम पे एरे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा देन आई विल गिव इनपुट एरे। ठीक है, तो इनपुट एरे के लिए हमने ARR डिफाइन कर दिया। NP होता है न्यूमेरिकल पैटर्न, NP.array एक एरे डिफाइन कर दिया, और उसमें जो हमारा P वाली लिस्ट हमने क्रिएट की थी वो उसमें हमने पुट कर दी। मतलब P हमारा एक तरह का जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी ऊपर वाली, जितना भी इसमें आएगा वो सारा इसमें स्टोर हो जाएगा एरे की फॉर्म में। सो अब इसके बाद प्रेडिक्शन करते हैं हम मॉडल की। प्रेडिक्शन वैसे होगी जैसे हमने ऊपर वाले में की थी, सेम यही। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जो ये सेम चीज़ की थी हमने कहाँ की, ये वाली प्रेडिक्शंस, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको पेस्ट कर दिया, बस इसकी जगह एक्स की जगह ना P आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें P दिया हुआ है, और P हमने डिफाइन किया हुआ है एरे में, तो सीधा ARR लिख दिया हुआ। ये इसकी प्रेडिक्शंस कर लेगा, और इसके बाद इसको कंडीशन देनी पड़ेगी चेक कराने के लिए कि अगर 1 आएगा तो हमारा आउटपुट आना चाहिए सर्वाइव्ड, अगर 0 आएगा तो हमारा आउटपुट आना चाहिए नॉट सर्वाइव्ड। तो ये डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें। ये हमें प्रेडिक्ट इफ़, इसको हम प्रेडिक्ट कर देते हैं अलग, ये हमने इसके लिए अलग क्रिएट किया है, बाकी सेम ही रहेगा, बस इसको हमने अलग कर दिया। इफ़ प्रेडिक्ट इज इक्वल टू, अगर 1 आएगा आउटपुट तो हम बोल देंगे कि रिज़ल्ट जो हमारा आएगा, डिक्शनरी की फॉर्म में लिख देगा इसको, रिज़ल्ट इज इक्वल टू सर्वाइव। ओके, और वैसे ही ये तुम्हारी कंडीशन होगी। अब आएगी एल्स की कंडीशन। एल्स में सेम जैसे हमने ऊपर कंडीशन लिखी थी, रिजल्ट इज इक्वल टू डिक्शनरी के नाम लेना है, रिजल्ट इज इक्वल टू नॉट सर्वाइव। ओके, और यहाँ पे हमारा हमने कंडीशन दी थी, तो लास्ट में हमें जो JSONify था उसको हमें रिटर्न करवाना है। रिटर्न JSONify, मतलब यहाँ पे रूटिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे रूटिंग कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे हम इसको इसकी वैल्यू रिटर्न करवाएंगे रिजल्ट वाली, और यहाँ पे हमें प्रेडिक्शन हमारी शो कर देगा। और यहाँ पे हमें ऐप, जो हमने ऐप क्रिएट करी है उसको रन कर देगा, उसको रन करके देखते जाएगा।
ओह सॉरी, इसमें ये गलती आई है। इसमें हमारा रन करना था ऐप को, हमने नेम ऊपर गलती से डिफाइन कर दिया। ये नेम तो हमने कर दिया था, यहाँ पे आना था ऐप, क्योंकि आप हमने तो ऐप को रन करना है और ऐप यहाँ पे रन रहेगी तो उसको हमने यहाँ पे रन करवा दिया। ये रहा, अब रन करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे रेडी कर रही है ऐप रूट एंड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सिबलिंग स्पाउस एंड पेरेंट चिल्ड्रन फ्लोट फेयर जेंडर एंड पी क्लास एंड तो हमने ठीक कर दिया इसको। यस, नाउ इट्स करेक्ट। सो अब हमारा सर इसमें एक पब्लिक यूआरएल क्रिएट हो गया एनजी वेब का, तो उसको हम रन करेंगे। अब इसमें हमें रूटिंग देनी है, तो रूटिंग में हम क्या करेंगे, जो हमने चेक करना कि हमारा जो पब्लिक यूआरएल में आउटपुट जो आ रहा है ठीक आ रहा नहीं आ रहा, इसमें हमें ये कॉपी करना है, मतलब ये इनपुट, और इसमें हमें रूटिंग देनी है इसकी। तो इसमें हम लिखेंगे 22 और 01 22। इनपुट हमने इसमें सेम इनपुट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। स्लैश का मतलब होता है रूटिंग देना, तो हमने यहाँ पर रूट दे दिया, रूटिंग 22 1 0 और 7.25 से हमने वहाँ पे रूटिंग देने के लिए इनपुट लिख दिया। और मेल चाहे कैपिटल लिखा स्मॉल लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने पहले उसको डिफाइन कर दिया। और मेल के बाद थर्ड क्लास ले लिया, उसके बाद ले लिया एस। एस का मतलब होता है साउथ एंट्रन, तो उसको हम लिख देते हैं साउथ एंट्रन। ये हमने सारा इसका इनपुट दे दिया हमने रूटिंग के लिए। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, ये हमने रन किया तो ये हमारा पब्लिक यूआरएल में इसका रिज़ल्ट शो होने लग गया, तो ये हमारा एपीआई क्रिएट हो गया। और आगे हम क्या करेंगे, इसी एपीआई को यूज़ करके हम अपनी ऐप बनाएंगे। सो इससे क्या आएगा, हम यही आउटपुट अपनी मोबाइल की स्क्रीन में दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। सो जो इसमें करेक्शन आती, हाँ ये देखो, इसे मैंने गलती से लगा दिया, स्लैश आगे में आया था, बस अब ठीक है। और हम रन करके देखते हैं।
this is our Nginx server. So, and the result is not survived. So next step is to build tester will generate the application using MIT App Inventor. So first of all, we have to open MIT App Inventor in Google. MIT app which is a GUI based, means graphical user interface, and we can here use drag and drop method, and which is simply based on uh, which is based on block method, and we follow some simple steps for having same thing happening in your smartphone. And first of all, you can download MIT App Inventor from Play Store. So download the app from Play Store named as MIT App Inventor. So open this with Google account. And this screen is visible. So first of all, I provide you a .ai file, which is a app inventor file. So import from your computer, name as trial.aoi. Sorry. I want to refresh trial, refresh. Okay. So first of all, import ai.ai file from your computer named as trial.ai file. Okay. So, sorry. Yes, it will appear like this. So, there is so this is a screen which is visible in your smartphone. Whatever changes we can do here, you can see same changes in your mobile phone. So to connect with your mobile, first of all, you download MIT App Inventor from your Play Store, and to connect this, we use AI Companion. So in app, scan this code in your app and connect it quickly. So wait a minute. So it will appear like this when you connect. It will take a while. Yes, it will connect. So now we have to place the input fields for input the value, as same thing is appear on your mobile. So for this we use text box. So drag this and place it here. We want 7 inputs, so we drag it.
And if I want to change the banner, it's the heading of the screen. So click on this intro banner label, screen 1 intro banner label, and change the text that Titanic prediction, and click here. Yes, so it will appear like this. And for hint, this is a hint. For changing the hint, first of all we have to rename the text box. That our first block is first input is our so for hint, click here, mark as a rename age. First input is age, okay, and mark as age. So there will and second same as other. So this one is sibling spouse, sibling spouse, okay, and provide us a hint siblings or spouse. Similarly for this sibling spouse and parent children, parent children, and for hint parents or children, and for this pair, for hint pair. Yes. And next one is gender, P class, gender, जेंडर में आया या फिर मेल होगा या फिर फीमेल होगा, मेल या फिर फीमेल. एंड इन दिस पी क्लास या फिर क्लास 1 आएगा या 2 आएगा या फिर 3 होगा, तो पी क्लास एंड दे देते हैं या फिर क्लास 1 आएगी अगर 2 आएगी या 3 आएगी. एंड लास्ट वन इज embark and in the block we provide Southampton, Queenstown, yes, Southampton, Queenstown. So we create a layout for this and hint for that age, sibling spouse, and that one is parent children, and fair male female class, and this one is for place, place for travel.
So layout part is done. So you can now we can create blocks for working and for setting up application. First you need to create blocks, and for blocks click on blocks. This screen appear, so drag to this side. This will automatically create. So first of all, in predict API you need to give API URL. Make sure that this will be working and not to stop this. So copy this one. This is a global API URL and paste it there. Yes. So hence it map the data from predict API. Now to add some procedure. Procedure is for giving out blocks. We give procedure to it because you need to update the data to user. मतलब हम procedure इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें इसका जो ये हमारी साइट है इसका डाटा अपडेट कराना है हमें. जैसे ये डाटा था हमारा, इसमें इसका डाटा था, हमें इसमें अपडेट करवाना है. तो उसके लिए पहले तो हमें प्रोसीजर देना पड़ेगा कैसे कैसे उसको मतलब कह सकते हैं हम. पहला स्टेप है हमारा इनिशियलाइज कराना. तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमें प्रोसीजर देना पड़ेगा. तो प्रोसीजर के लिए पहले हमें और इसमें हमें पता कि हमने देखा है इसमें कि ये डिज़ाइनर में जो लास्ट का ऑप्शन है क्लिक करें तो हमारा रिजल्ट आए. यहाँ पे हमारी टेस्ट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड. हम टेस्ट लिखेंगे तो आपको इस पर हमारा रिजल्ट आए. तो इसके लिए हमें पहले इसकी फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी. तो पहले प्रेडिक्ट किए थे, प्रेडिक्ट लेफ्ट साइड पे प्रेडिक्ट, क्लिक ऑन प्रेडिक्ट एंड दिस विल अपीयर ऑन लास्ट. ड्रैग दिस ऑन दिस साइड. यस. एंड for procedure go to procedure side and to procedure. This means to give a task to procedure for initializing. Yes. So next step is to give the input fields to this procedure. So where we had variables like x1, x2, x3, x4, they are like inputs. So give 7 inputs here. Simply drag and drop method. Inputs are, we add 7 inputs. So our next step is to call the procedure. For calling procedure, click on procedure and drag this on vertex side. So place it below. सो एक बार बता देता हूँ. सबसे पहले तो हमने इसको इनिशियलाइज कराया. कैसे? पहले इसका हमने क्या प्रोवाइड किया इसको, ये जो हमारा API था जो हमने बिल्ड किया था उसको हमने पहले इसमें प्रोवाइड कर दिया URL, पब्लिक URL. उसके बाद हमने फिर इसको इसमें इनपुट जो इसमें हमने जो
हमें इसकी फंक्शनैलिटी देनी है, इसकी क्या नाम है डिज़ाइनर में, हमें इसकी फंक्शनैलिटी देनी है कि अगर क्लिक करेंगे तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हमने इसकी फंक्शनैलिटी देने के लिए ब्लॉक्स क्रिएट किया कि जब क्रिएट करें तो क्लिक होए। क्लिक क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी हमें। तो उसकी फंक्शनैलिटी के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा हमें फंक्शनैलिटी के लिए एज में आएगा टेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें टेस्ट फील्ड ले रखी है। तो अगर हम देखें उसमें डिज़ाइनर में, तो हमने टेस्ट फील्ड ले रखी है, तो हमें टेस्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे इनिशियलाइज के लिए। तो वैसे ही सिबलिंग्स कोर्स का भी हम लेंगे, ऐसे सिमिलरली साथ सबके हमने कर लेने हैं। सिमिलरली इसमें भी कर लिया शेयर का लाइक और ड्रैग, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। and last a mark. So in next 10 to 15 minutes we will be creating all blocks and make the connection. So after that now we'll give this to procedure, and from this when once you get the procedure you go for fetching the data. और पहले तो हमारा काम तो था कि हमने पहले इसकी फंक्शनैलिटी दे दी हमने प्रिडिक्ट की बाय यूज़ ऑफ टेस्ट फील्ड। जो हमने ये टेस्ट फील्ड यहाँ से यूज़ किया था, ये हमने इसका लेआउट दिया इसका, मतलब इसका फंक्शनैलिटी जब इस क्लिक करेंगे तो ये हमारा शो होएगा। वैसे ही हमने इस पर सारा टेस्ट भी इसके इनपुट दिया, तब जाके ये हमारा कॉल प्रोसीजर होएगा। तो कॉल प्रोसीजर के बाद टू प्रोसीजर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो ये डाटा जितना भी डाटा था वो यहाँ पे फैच हो जाएगा। तो उसके लिए हमें वेब फैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे वेब फैच होएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे बस सेट सेट वेब पेज URL टू, ये ऑप्शन ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा वेब पेज है वो URL को चला जाएगा। तो उसके बाद सिंपली इसके बाद हमने क्या करना है, सो वंस वी आर एडिंग इनपुट वी हैव टू ऐड ईच एंड एवरी टेस्ट। यस, वंस वी आर एडिंग इनपुट वी नीड टू ऐड ईच एंड एवरी टेस्ट। तो उसके लिए हमें गो टू टेस्ट, यहाँ पे ऑप्शन होगा ज्वाइन का, सेटिंग। इसके बाद जाके go for at least 15 string because our inputs categories are 7 and everyone is separated by slash. So 7 plus 7 is equal to 14 and one URL for Nginx server, that one. So total is 15 categories. So go to setting and 15 string put करनी है मुझे।
we are fetching data from URL and we try to map each and every individual category with the help of variables. So for variables, click variables and get. और इसमें बता रहा होता है इसमें क्या है, हमने इनपुट जो है जैसे इनपुट जैसे ऊपर दिया था हमने कि पहले इसका इनपुट आएगा फिर उसके बाद हमारे इनपुट्स आएंगे, तो वैसे ही हमने इसका ले लिया, इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, एक छोड़ के मतलब अभी बताते हैं। इससे सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ऑप्शन होता है ग्लोबल प्रेडिक्ट एपीआई। सबसे पहले तो हमने एपीआई का कॉल किया, यहाँ से ये वाला एपीआई इसमें यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ये ग्लोबल एपीआई प्रेडिक्ट एपीआई। एंड फॉर दिस एक्स एंड x2 and for this x3 and they are all input fields x4 x5 x6 or x7 and that is for giving slash. So for this click test and there empty, we use empty and duplicate, place it here, duplicate. Similarly we can do this for other and place it here slash. This will help us to give functionality for our mobile application. So it will appear like this. First of all, predict API, then slash, then input field, then slash, then input field, then slash, then this. So it will appear like this. So we call the web fetch here. So for calling the web fetch, again go to web fetch and once data is fetched, we are given all the inputs and you need to fetch the data from URL again. And for web fetch, we call web fetch yes, this one, call web fetch get and place it here. So finish. And lastly, final step is to just drag your cursor this side. You have another block which is automatically created. So and you are fetching content. So for appearing result, copy result. Copy and paste it here. Yes. So
लास्ट बार एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्या था किया मैंने. फर्स्ट वी गिव predict फंक्शन एंड वी इनलाइज. हमने फिर इनलाइज कराया इसको प्रोसीजर को फॉर इंडिविजुअल वेरिएबल्स. एंड लास्टली क्या किया हमने, प्रोसीजर फॉर फैचिंग डाटा इंडिविजुअली. एंड वी आर गिविंग इसमें क्या दे रहे हैं इसमें लास्ट में, गिविंग फैच डाटा. सो फॉर कनेक्टिंग टू मोबाइल यूज ए कंपेनियन. Scan this. It will take a while for connecting, and same scale is visible in your mobile phone. And input same input which we apply here. So 22 1 0 7.25 male and class 3 and Southampton. So the result is appeared not survived. So finish with this. So thank you for your time. So thank you for kind attention.